कॉकरोच जनता पार्टी जितना कुछ लोगे उतना फैलेंगे। सर ये ऊपर से पानी निकलता है कि कुछ और, लेकिन ऊपर को क्यों है ये अभी नीचे को होगा ना। अच्छा नहीं होगा पक्का। हर वर्दी के नीचे भी एक दिल होता है कि नहीं? वो कोई नहीं एक्सप्लोर कर रहा। They're awful. अभी मैं नोएडा मीडिया की तरफ से आया हूँ यहाँ पे। ये जो जेंजी भटक के ये उल्टे सीधे बैनर लिए ये रॉफेल के सिखाए लड़के हैं। If a police officer tells me 50 ग्राम कोकेन डाल दूंगा, I'll be shit scared. In your words, in the general words, मेरी तो जी फट जाएगी। देखो पापा कैसी बातें कर रहे हैं। He's a doctor. Tell me where is my heart? From where your feelings are coming. And tell me where is the education minister's heart? It is missing. एक आया पंजाबी में बोलने के लिए, उसका माइक ही गिर गया, वो बोल ही नहीं पाया। उसको वो मोदी तो नहीं था। कड़े सारियां दे विच वो मैंने बहुत मान महसूस हो रहा हो। अगर कलम को आज आज़ादी मिल जाए ना तो देश को समझो, जो कहते हैं ना कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है, तो रियल आज़ादी 2026 में मिल जाएगी अगर मीडिया आज़ाद हो गया तो। Hello to all you cockroaches and the non-cockroaches watching as well. This is for you too. Jai Hind from a former Andolan Jeevi. I haven't participated in any street march or protest for over a decade. Hell, I have not hit the ground in years for anything. This place is a little too familiar to me. You see बेटा, जब हम जवान थे तब हम भी धरना दिया करते थे. From 2005 to 2012, RTI file amendments protest को लेके जन लोकपाल आंदोलन, every year or two we were here protesting. As one of the founders of what turned into the India Against Corruption movement, I am here to check out the Gen Z protest at Jantar Mantar that got us our first resignation from a BJP minister. Salute to Gen Z. I must admit, you have been way more successful with your first Jantar Mantar rendezvous than we were. For those who missed it, join me in a vibe check at Jantar Mantar, back to base after over a decade. And we have someone from Bombay here, correct sir? From Maharashtra. I'm Abhinandan from Newslaundry. This is Manisha Pandey, Atul Chaurasia. ठीक है, हम न्यूजीलैंड से हैं। दीपक चौरसिया नहीं, वो गलत। बिल्कुल सेम काइंड ऑफ रिपोर्टिंग। So, are you here to make a speech with any special message then? See, I am a product of students' movement. Okay. Way back in 1980. Okay. So this is what 46th year. I have been an MLA for last 5 terms. I think the first time in India, an age group which should not be touched has been touched. And you have done a wrong thing कि जिसको हाथ नहीं डालना था उसको ऊपर तुमने हाथ डाल दिया. इनको गंवाने जैसा कुछ भी नहीं है. They have nothing to lose. So now look at their strength. A boy comes out in front of the police and says, "Maro, maro, maro." A girl is holding a police bus with one hand. Where does this strength come from? If a police officer tells me 50 ग्राम कोकेन डाल दूंगा, I'll be shit scared. In your words, in the general words, मेरी तो जी फट जाएगी. These boys showed that they are crying. You're also getting infected by the language of. देखो पापा कैसी बातें कर रहे हैं. The boys showed that they were about to cry and they were doing like this to each other. They took the video and put it out. The police lost his job. Yeah. We have a RAF बस है। हर चीज़ की पहचान होनी चाहिए, तो ये भी पता। सर ये ऊपर से पानी निकलता है कि कुछ और? पानी वाला, ये पानी वाला है, इससे पानी निकलता है। और वो धुआं वाला नहीं है यहाँ कहीं? धुआं वाला भी उधर खड़ा है। अच्छा वो भी दिखाएंगे आपको। ये पानी वाला है, इससे पानी निकलता है, लेकिन ऊपर को क्यों है ये अभी नीचे को होगा ना। अच्छा नहीं होगा पक्का? कैसे पता है? जब ये लाठी चार्ज करेंगे तब होगा ये नीचे को। तो आपको कैसे पता होगा? यार ये फिक्स मैच है क्या? क्या फर्क करेंगे? घी खाया करो अशोक, बुढ़ापे में जब समझ के आगे आप। लेकिन वो मैं नहीं था, पता है मुझे तभी। ठीक है, लेकिन मैं खा रहा हूँ आजकल। एक्चुअली आपका नाम? मेरा नाम सुमित खरब है, मैं हरियाणा हिसार से हूँ। अच्छा। हाँ जी। एक्चुअली सर जिस दिन ये प्रोटेस्ट, मतलब जिस दिन बच्चों पे लाठियाँ बरसाई गई, मैं फैमिली के साथ नैनीताल में था। आई वॉज एंजॉइंग माई वेकेशंस ओवर देयर। आई सो द वीडियोस और एल्गोरिथम भी ऐसा है कि आपको ना वही दिखती है। फिर आई वाज क्राइंग, आई वाज क्राइंग ऑन द बेड।
So I thought that day कि I will definitely come. This is my first day. तो आप हिसार से आए हैं हाँ हाँ अकेले या फैमिली के साथ? अकेले। फैमिली तो गुस्सा कर रही थी ना मेरे को। बीवी, मेरी खुद बीवी पैरामिलिट्री फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर है, तो वो भी मना कर रही थी। शी नोज की हाउ द पुलिस हैंडल्स। अगर इतने भद्दे विजुअल्स बच्चों के पीटने के ना आया होते तो शायद कई लोग यहाँ पर ना होते, इंक्लूडिंग मी। तो शायद मैं भी नहीं आता। मतलब अब 150 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर हैं और 150 पेपर लीक हो चुके हैं पिछले 10 सालों में, जिसमें मैं भी सीजीएल की तैयारी किया करता 2016-17 में, तब भी पेपर लीक हुआ करते थे। तो आपकी भी तो अकाउंटेबिलिटी बनती होगी ना सर, कुछ ना कुछ तो। थैंक यू यार, अंदर मिलते Oh हैं। God! They're awful. रोफल, ये आप शायद इनको जानते नहीं, ये है रोफल गांधी। इनको कौन नहीं जानता है? हाँ? नहीं, हमें बोलना पड़ेगा। अच्छा, इनको बता रहे हो? हमें बोलना पड़ेगा कि आप इनको जानते हो, हमको नहीं जानते होगे। जानते तो हाउ कम योर फर्स्ट ट्रिप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? मैं पहले तो आता रहा हूँ वंदन भाई। अभी मैं देख रहा था, अभी मैं नोएडा मीडिया की तरफ से आया हूँ यहाँ पे। ये कहा जा रहा है रिप्रेजेंटेशन आपके ये कहा जा रहा है कि ये लड़के जो जेंजी भटक के ये उल्टे सीधे बैनर लिए, ये रॉफेल के सिखाए लड़के हैं। नहीं, मैं भैया बता क्या बोले आया था इनको कि भाई जो थोड़ा वो धक्का मुक्की हुई है एलिजिडली मीडिया, क्योंकि मीडिया से बात कर रहा हूँ तो कथित तौर पे, हाँ। कथित तौर पे यहाँ पे हुआ है। तो मैं अभिजीत दीपक को भी ये बोलने आया था, आपके जो लड़के हैं जिन्होंने ये सब किया है 200, 250, 500, आप जाइए टाइम्स नाउ के ऑफिस जाइए, वहाँ जाके बात किए, माफ़ी मांगे। तो अगर आपने किसी चैनल के कर्मचारी के साथ किया है, उनकी तो कोई गलती नहीं है। अगर मान लो वहाँ पे कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी दिखा रहा है, तो यहाँ से जो फीड दे रहे हैं वो तो चला नहीं रहे हैं, वो तो अपने आप ही डिसाइड कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ जो शूट हो रहा है वो यूज नहीं कर रहे, एआई से गाड़ियाँ तोड़ने के वीडियो बना रहे हैं। हाँ, एनडीटीवी पे। हाँ, वो तो गाय किकिंग अवे ना, लोग एक साथ एक ही गाड़ी तोड़ रहे हैं। तो कल से हमने देखा कि इन पर्टिकुलर, क्योंकि आप न्यूज़ लॉन्ड्री का काम करते हैं, तो अमीश देवगन बहुत गुस्से में है, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किया जा रहा है। गुल्लू क्यों भाई? क्योंकि उसने बोला है पुलिस पिटने के लिए नहीं होती है। हमें पता है वो पीटने के लिए पीटने के लिए अच्छा, और कौन? और अर्नब गोस्वामी वो भी गुस्से में, वो तो गुस्से में ही रहते हैं। नहीं, वो बीच में पलट गए थे। अब मेरे ख्याल से कुछ रिन्यू हुआ है उनका, कुछ ऐसा लगता है मुझे, कथित तौर पे कुछ renew कथित हुआ तौर पे। तो उनका तो उन्होंने लीड ले लिया है, कल से वो पूरा एकदम से चालू हो गए हैं। हमारी नाविका जी तो हैं ही। नाविका जी ने क्या किया, उनका जो एक मुंसिर कोई शायर वायर है, उसका कोई इंटरव्यू कर रहे थे, मनोज तो, उन्होंने कुछ बोल दिया वहाँ पे, तो नाविका जी पे भी लोग गुस्सा कर रहे थे। तो मैं इन सब लोगों की तरफ से यहाँ पे आया हूँ कि ये सब लोग डेलीगेशन बना के आना चाहते हैं यहाँ पे। अमीश देवगन आना चाहते हैं, नाविका जी के नेतृत्व में सब लोग आना चाहते हैं यहाँ पे। अगर ये लोग शांति का, सुरक्षा का वादा करें तो मैं उन लोगों को यहाँ पे ला सकता हूँ। तो ये हम लोग को भी बुला लेना यार उस दिन। हाँ, आप लोग भी आइए। तो हाँ, साथ में चलेंगे। हाँ, साथ, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है ना, हमारा तो चौथा खंबा है। हालांकि साथ में चलना चाहिए। चौथा खंबा है, सुनो तो पूरा सुनो। चौथा खंबा, हालांकि चौथा खंबा मूत के कमजोर हो चुका है, उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा पेशाब ज्यादा किया जा चुका है, लेकिन फिर भी कैसी बात कर यार, एक सेकंड, मुझे थोड़ी नर्वसनेस हो रही है। जब हम यहाँ आए थे, यहाँ पर कोई आरएएफ नहीं थी। अब पता नहीं 10 लोग खड़े हैं, ये जैकेट्स जा रही हैं, ठीक ठाक तो है ना सब कुछ? नहीं, वैसे ये क्या है कि डरा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब मैसेज देना होता है निकलो यहाँ से। भाई मैं कह रहा हूँ, बच्चे इतने नॉन सीरियस हैं यहाँ पे, ये जितना ज्यादा जैकेट देखते हैं उतना ज्यादा कंटेंट बनाते हैं। हाँ। आप उस तरफ देखेंगे ना, इधर तो सीरियस वाला माहौल है। आप जैसे लोग जो घूम रहे हैं, थोड़े सीनियर लोग घूम रहे हैं, उधर जाओगे ना, वो ऐसा लगता है कि माँ के पेट से भी निकल के आए हैं। वो कुछ भी नहीं जानते भाई, उनको बस मजा लेना है यहाँ पे आके। तो ये ऑर्गेनिक कंटेंट निकल रहा है। एज अ मिलेनियल क्या लग रहा है आपको, जेनजी के ही इस नॉन सीरियस एटीट्यूड ने, जिसने इतना सीरियस नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पैदा कर दिया? आई थिंक दे आर अ फार बेटर जनरेशन। आई थिंक वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा पागल भी नहीं हो रहे कि हाँ उनको सोनम जिंदाबाद लगाने अभिजीत दीपक ने। ये जैसे हमारे वाले हुए थे कि अन्ना जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अन्ना जी इतना आगे बढ़ गए कि हम हमें मिल ही नहीं रहे। मैं अन्ना हूँ। तो ये कह रहे हैं कि सोनम जी आप अपना मेदांता में हो संभालो, स्वास्थ्य संभालो। अभिजीत भाई आप जो है कचौरी वगैरह खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ऐसा नहीं है कि हम आपकी वजह से यहाँ पे बैठे, आप हमारे नेता, आप सबको लाए हो, ये अलग बात है, लेकिन सबका अपना अपना विचार। That is actually I've noticed, you know, when I walked around yesterday, everyone is doing their own thing. It's not revolving around the stage. और एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे, बड़े इन्होंने जब आके शुरू किया था, सोनम जी ने या दीपके जी ने, वो धर्मेंद्र प्रधान पे फोकस शुरू किया था। अब आप माहौल अंदर जाके देखेंगे मोदी है सिर्फ। हाँ, it's all मोदी। It's all मोदी। मोदी के और पोस्टर्स, जो- मोदी के नारे। नहीं, मुझे वर्ड्स सीखने को मिल रहे हैं। सबसे भद्दा नारा क्या सुना मोदी के बारे में? ऐसे नहीं, हम ये सब नहीं, यहाँ पे यार, online वैसे ही एक ऐसी अब शब्द बोल चुके हैं आप। मनीषा जी कुछ तो संयम रखिए, कुछ तो थोड़ी मर्यादा रखिए, कुछ तो थोड़ी मर्यादा मर्यादा। कुछ तो बढ़िया था। सबसे अभिनंदन भाई, आप लोगों को जो निराशा पिछली बार हाथ लगी थी, इस बार नहीं लगी।
इस बार मुझे लगता है कि मुकाम पे पहुंचेंगे। इस बार मुझे लगता है कि मुकाम पे पहुंचेंगे। सोचा सबको थोड़ा लपेट दें, अभिनंदन को भी थोड़ा जाते जाते। आप खुद भी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सवाल, आपका माइक है वैसे तो, कि आपने जैसे जो आप इसके बहुत ही एक्टिव मेंबर थे, वो सब चीजें कर रहे थे, आपने इसको भी स्टडी किया, क्या सेम पैटर्न है या कुछ अलग लग रहा है? नहीं, पैटर्न बहुत अलग है। मैं कल आया था शाम को, यहाँ थोड़ा घूम के गया था। हमारे टाइम में जैसे मैंने आपको बताया सब एक्शन स्टेज के इर्द गिर्द था, तो हमारा इंस्ट्रक्शन था स्टेज को बिजी रखो। इट कैन नेवर, जैसे कहते हैं ना, यू कैन नेवर हैव डेड एयर, रेडियो पे रूल है, तो यू कुड नेवर हैव डेड नॉइज। तो या गाने बजाओ या यहाँ पर स्पीच हो रही हो या ना हो रही हो, जैसे आपने बताया सब अपना अपना वो सेल्फ मोटिवेटेड है। सो इट्स नॉट अराउंड द एक स्टेज। बड़े मजे की बात अभी मैं देख रहा था, तो सब अपनी अपनी भाषा में आगे यहाँ स्पीच दे रहे हैं। तमिलनाडु से भी आ रहा है, तमिल जे के, तो जो हिंदी नहीं बोल पा रहे ना स्पीच दे रहे हैं। अभी एक बंदा तेलुगु में स्पीच दे रहा था, किसी को उसका कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर वो सब कहते यस भाई मजा आ गया, एकदम चिल्ला गए सब लोग। उसको ऐसा लग रहा है सबको समझ। एक आया पंजाबी में बोलने के लिए, उसका माइक ही गिर गया, वो बोल ही नहीं पा रहा। उसको वो मोदी तो नहीं था, तो सानू कितने ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ। Let me talk to some youngsters also. Oh, oh my God, they really पुलिस स्टेशन में hammered you? लेके जाके मारे उन्होंने। पुलिस स्टेशन में लेके जाके मारा? यहाँ पे स्लैपिंग मारा, नाखून को ये किया। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इधर भी है। तो ये सब फिर से क्यों आप आए? आपको क्यों लगा कि फिर से जाना चाहिए? नहीं, इनको लगता होगा कि लाठी मारने से, गोली मारने से हम डर जाएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम भगत सिंह को मानने वाले हैं। इस लाठी चार्ज से हमारा हौसला और भी बुलंद हुआ है। और हमारे और भी साथी, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मैं विदर्भ से आता हूँ, मैं भंडारा जिले से हूँ। तो भंडारा जिले और पूरे महाराष्ट्र से हमने पूरे 4000 लोगों को लेके आए थे। अब वो 4000 की तादाद 4 लाख में बदलने का काम हम भी करेंगे, और लोग भी आ रहे हैं अभी भी। तो इनको लगता है, हम नारा लगाते हैं, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और दम है कितना लाठी में तेरे, अब देख लिया है और भी देखेंगे। सर, हम सबकी पीड़ा के बारे में सुनते हैं। अब हमने काफी वीडियो दे रहे कि पुलिस की पीड़ा भी नहीं, हम मीडिया पे बात नहीं कर सकते। अच्छा, वो मैं ये बोल रहा था कि क्योंकि सब बोल रहे हैं कि भाई इनको ये पीड़ा है, तो मैं बोल रहा था कि ह्यूमन साइड तो सबकी होती है। आप भी सुबह से बैठे होंगे, आपको भी कोई नहीं पूछ रहा खाने पीने का, तो आप वो एंगल बता सकते हैं हमें, क्योंकि अभी हमने सिर्फ लाठी वाला एंगल देखा है। नहीं, आप प्लीज हमसे इस बारे में ना पूछें। अच्छा ठीक है, और कोई है जो बता सकते हैं? और कोई नहीं बताएगा इसके बारे में? हमारे सीनियर ऑफिसर डीसीपी ऑफिस वो डिस्कस करेंगे ये ह्यूमन साइड, बता सकते हैं, वो बता सकते क्योंकि हर वर्दी के नीचे भी एक दिल होता है कि नहीं? बिल्कुल, वो कोई नहीं एक्सप्लोर कर रहा। आप कर लें बात। चल, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इट वाज माय ड्यूटी टू आस्क, है ना? The cops also, there may be another angle to explore. No, and I am actually, You're always siding with cops I'm always in saying life. I'm a statist. No, but I feel like they've been put in a situation, and this people versus police के बीच में we forget who's put these two people in a confrontation together. आपका नाम है? हाँ? पूजा। आप टीचर हैं? नहीं। अच्छा, आप जानते हैं कि ये एक प्राइम टाइम शो है जो एक टीचर बनता है बंदा, और वो ब्लैक बोर्ड पे देखा है आपने वो शो? प्राइम टाइम टीवी देखते हो? वेरी गुड। ओके, अब हम दिखाएंगे क्लास पाठशाला, सुशांत सिंह की पाठशाला। वो हमारे पास बजट लो है, तो हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन नहीं है, बट हम चार्ट पेपर से काम, कोर्सेज नेम जो सुशांत सिन्हा, सुशांत ब्लैकबोर्ड से। तो it says, dear Delhi police, a uniform is not just a cloth, it is a promise. This is what Delhi police. The Ashok emblem says your authority comes from the constitution, not from the government. There's a difference in the two. Acha, then stars equal responsibilities, more stars equals more accountability. वो जो star होता है. The badge is not a license to intimidate. It is a reminder to protect us. And a baton is for lawful restraint, not for silencing dissent. A weapon is the last resort, never the first response. दिल्ली पुलिस के लिए सुशांत सिन्हा की क्लास होगी नहीं,
तो पूजा जी ने चार्ट पेपर पे बनाया है, हमारा बजट थोड़ा लो है। थैंक यू पूजा जी। कहाँ से हैं पूजा जी आप? यूपी। हाँ? यूपी कहाँ यूपी में कहाँ से? कानपुर। कानपुर से हैं। और यहाँ कैसे आई हैं? डरने के लिए आई। तैरने के लिए अकेले आई हैं, फैमिली के साथ आई हैं, किसके साथ आई हैं? साथ में अकेले आई। अकेले आई हैं। और क्या करती हैं आप पूजा जी? स्टडी करती हूँ। स्टडी करती हैं। क्या पढ़ रही हैं? थर्ड ईयर में हैं। कॉलेज में क्या पढ़ती हैं? कॉमर्स है। और क्या देख के आप यहाँ आई? किस रीजन से आप यहाँ आई? हम अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं और लोगों के लिए भी लड़ रहे हैं, पूरे भारत के लिए लड़ रहे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन कभी आपने ठग्गू के लड्डू खाए हैं? नहीं, वो कानपुर की स्पेशलिटी है। ठग्गू के ठग्गू के लड्डू। लड्डू नहीं बना? अरे बड़ा अच्छा है, चीनी बहुत होती है उसमें। We have the young organizer of the whole protest. तो खाने जा रहे हैं। चलिए तो फिर आपकी तारीफ। आपके न्यूज चैनल में सर को देख के आया हूँ कि हम भी मैंने सर को पूछा देख के है, आए हैं। हाँ कि न्यूज आप न्यूज लॉन्ड्री से हो। हाँ। तो इन्होंने मिला है, तब मैंने बोला है कि सरकार के खिलाफ लड़ने से पहले आप गोदी मीडिया के खिलाफ बोलो और उसके खिलाफ लड़ो। गोदी मीडिया अगर सही हो गया ना, देश की 80% समस्या आज ही खत्म हो जाएगी। इतनी अकल की बात कम ही पैनल्स में देखने को मिलती है। आप करते क्या और आपका नाम क्या है? जी मैं एक छोटे मोटे प्राइवेट नौकरी करता हूँ, मेरा नाम रिजवी है सर। अगर नाम भी मैंने आपके चैनल पे बताया, सरकार नाम से ना मोदी जी कपड़ा देख के पहचान लेंगे कि मैं कौन हूँ। तो हम नाम को बीप आउट कर। बट ऑनेस्टली इनफ जोक्स, इट इज अ डिसग्रेस कि जब कोई किसी और कौम का हो अपना नाम देने से हिचकिचाता है। यार क्या कर दिया है देश में आप लोगों ने यार। लेकिन खैर नहीं, इसके लिए मोदी जी जितना जिम्मेदार आप मान रहे हो ना, मोदी जी से ज्यादा जिम्मेदार मीडिया ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया है। अगर आज मीडिया में अगर कलम को आज आजादी मिल जाए ना, तो देश को समझो, जो कहते हैं ना कि 2014 के बाद आजादी मिली है, तो रियल आजादी 2026 में मिल जाएगी अगर मीडिया आजाद हो गया तो। ये जो इतने लोग यहाँ पे आज विरोध कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? इसकी असल जिम्मेदारी ना मीडिया की थी। मीडिया असल इसके लिए अगर जिम्मेदार। वो अपना काम कर रही होती, अगर कर रही होती तो आज हमें यहाँ पे नहीं आके करना होता। अगर मीडिया ने सरकार से सवाल किया होता हर मुद्दे पे, 12 साल हो गया, हम पीओके लाएंगे, पीओके तो छोड़ दो, अपनी जमीन चली गई चाइना के पास। बोलो है कोई सरकार का बंदा जवाब दे दे? अगर आपने सवाल से पूछ लिया तो आप एंटी नेशनल हैं, सरकार विरोधी हैं, पूरे कितने बंदे मौजूद होंगे सरकार के यहाँ पे जो आज आपको लाठी मारेंगे। आपके न्यूज चैनल और सारे न्यूज चैनल पे हमने देखा है कि किस तरह प्राइवेट गुंडे भर के यहाँ पे लाठी मरवाया गया है। Are you a doctor? He is a doctor. What's your name? Dr. Padan. I am from Khopoli, Raigad, Maharashtra. And are you a doctor, as in a medicine doctor? Have you done a philosophy? Have you done a PhD in the entire political science? I am medicine doctor. I am not into political science as like Modi. Acha. I have my hospital. Are you sure? Yeah, obviously. Tell me where is my heart? Tell me where is my heart? From where your feelings are coming. And tell me where is the education minister's heart? It is missing. I feel you do. Obviously. But since when have you been sitting here? I am from last 7 days. When we started March, that's why I came over here. And at the Kerala house, when the police lathi charge. So where are you from? I am from Khopoli, Raigad, Maharashtra. महाराष्ट्र से बहुत लोग आए हैं। या तो अभी जैसे हम देख रहे थे कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि यार मेरी भी कुछ वहाँ पे होना चाहिए, भूमिका होनी चाहिए, अपने भी कुछ सहयोग होना चाहिए। इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था, तो इसके लिए मैंने बोला कि यार डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मेरा हॉस्पिटल बंद करके मैं आया हूँ यहाँ पे। और आने के बाद जब कोयला हाउस पे जब लाठी चार्ज हुआ, तो वहाँ पे 30-40 लोगों को मैंने ऑन द स्पॉट वहाँ पे हमने, वो लाठी मार के जाते थे मैं दवाई लगाता था, वो लाठी मार के जाते थे मैं दवाई लगाता था। आपका लाइवलीहुड लॉस कितना होगा अभी? नहीं सच, क्योंकि अभी अगर आप यहाँ नहीं होते, आप पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते जिसके लिए आपको पगार मिलता। पर डे कम से कम मेरा जो भी लॉस हो रहा है 1.5 लाख का तो मेरा खत्म होगा, पर मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ। ऑल दिस इक्विपमेंट, मतलब ये दवाइयाँ कौन लेके आया? हाँ, ये एक बहुत सीक्रेट बात है। आज मैं आपको बताता हूँ,
इतना मैंने मेरे जिंदगी में देखा नहीं होगा। हर 5 मिनट में एक बंदा, कोई भी बंदा आता है, हमको दवाई दे के जाता है। एक ट्रक भर के दवाई हमारे पास आई है, एक ट्रक भर के। सैनिटरी पैड हमारे पास 10,000 सैनिटरी पैड का डोनेशन आया है। 10,000 लोग आपको डिलीवर करते जा रहे हैं। लोग, कोई आ रहा है, ये ब्लिंकिट वाले आ रहे, कोई भी आ रहे जो पार्सल वाले, वो बोलते कोई केरला से डोनेशन आया है भाई, कोई बोल रहा है कि चेन्नई से डोनेशन आया है भाई, कोई बोल रहा है हैदराबाद से डोनेशन आया है। इतना डोनेशन आ रहा है 2 दिन से, इतना ज़्यादा कि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। उधर देखिए जो बैग से ना उधर पूरे भरे हुए हैं। That's crazy. बहुत ज़्यादा The मेडिसिन। power of crowd sourcing. Information, medicines, subscription. I know अभी आपको मैं थोड़ा घटिया टाइप का हूँ, मैं थोड़ा अपना Obviously सब्सक्रिप्शन आपको प्लग बहुत करता अच्छी तरह से हूँ। जानता हूँ मैं। अच्छा आप जानते हैं मैं आपको पहचान गया। आपकी फितरत से वाकिफ आप हूँ। हमेशा सब्सक्रिप्शन मांगते हैं। And I never knew what is Anjana Om Kashyap. Literally, I came to know through your perspective only. And I introduced you. whenever I get a time, I simply see you. I listen and I just see that, okay, what is the perspective I need to carry? So that's the only thing which I have. Thank you so much for actually giving us an alternate media. This is young Varun जो सुबह से आप खड़े, सुबह से तो पता नहीं, जब से मैं आया हूँ खड़े आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मेरे 2-3 क्वेश्चन है, फिर मेरे कॉलीग्स के कुछ होंगे। एक, कल शाम को मैं आया था बिना कैमरास के बस टहलने, तो क्योंकि पुलिस नहीं थी, करीब 15-20 वॉलंटियर्स ने लाइन बनवा रखी थी, सब कोऑर्डिनेटेड काम कर रहे थे, कुछ पंखे कर रहे थे, कोई गार्बेज क्लीन कर रहा था, और एक सिस्टम, एक अनुशासन था उसमें। So do you have logistics point of view से पूछ रहा हूँ, you have a training कि भाई आप sanitation department में होगे, आप lines maintain करके, how are you managing this? It's a public protest. The protest belongs to the public. Okay. We don't recruit volunteers. They come up on their own when they want to help us. And we tell them that they have to look for work away for themselves. It's their protest. How can they make it better? So then the rope that was tied last night, from that side when you come, you have to go, then the rope comes this way. Who decided now the rope is this way? This is Public itself. there is no centralized person telling them this. And all the people who are cleaning the garbage, who That's a waste management team. a separate team, Yeah. and they know what to do. There are volunteers who come over here for a few hours a day, 2 hours in the morning, 2 hours in the evening. We make a public announcement for all the people to help us in cleaning up the place. So if you are here in the evening time, you will see not only our waste management team, but protesters in general picking up brooms, picking up garbage bags, and cleaning the street. The only people not working is NDMC. Are you guys worried a little about security? Because the first time I came, there was a proper police inspection, bags check हो रहे थे, सब कुछ. There's a sense of okay, safety. कोई चेक कर रहा है, अब कौन चेक अब कर तो रहा है? आपको थोड़ा वो नहीं लग रहा कि अब दिल्ली पुलिस ने होप गिव अप कर दी तो हम क्या कर सकते हैं? हालांकि उसके बाद मामला थोड़ा शांत ही रहा है. हाँ, that's why. And Like so how- there is the sanitation, there is the security, and there is the maintaining the lines, right? These are 3 aspects. 4th aspect of the food coming in, like people are coming in dropping food. We are When getting does flooded with food. so when do they know कि भाई आप जाके खाना खा लो, कहाँ खाना है? Is there a system in place? People are ordering food on Zomato. The boy is coming here and he's giving food to anyone. तो जो भी दिखे उसको दे दिया. Yeah, like mainly और वो आके यहाँ दे देंगे. उनको ज़्यादा the food is for protesters at the end. हम भी उन्हीं को देंगे. अब diet उनको मिल जा रहे थे, bypassing us, we don't mind that. Oh, I see. So If the food is coming in quantity, then we take it over. anyone there and it's passed around whoever's hungry. Yeah, we don't keep food with us. As soon as it comes, we take it out. So pizzas, burgers, biryani, pasta, you name it, we are getting it over here. Pasta, Italian connection. and what about the other big headache like Which is one journalist complaining कि हमको heckle किया या crowd में कोई incidents हाँ, of वो how do you violence control that? like is आपने that 10 साल मीडिया पर बात किया, थोड़ा तो आपको झेलना पड़ेगा. but like do you guys have a way कि आप announce कर रहे हो या हम लोग देखो, it's a peaceful protest. ये हमारा काम है, हम अनाउंस कर रहे हैं. But at the end, public has a mind of its own. What they do, we really can't control it. We can only try to diminish it, the matter. At the end, whatever is happening outside the ground, we really can't take control over that. यहाँ पे दिल्ली पुलिस का काम आता है, और दिल्ली पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं.
तो हम कुछ नहीं कर सकते. Like they come to us, हमसे बोलते हैं कि आप रिक्वेस्ट करो, ये दिल्ली पुलिस का काम है, पर लाठी चलाने के लिए उनको कुछ आता नहीं है, so they need training in that as well. सर एक सेकंड, आपका नाम सर? आपका नाम? मणि. तो यहाँ सफाई आप एनडीएमसी से है कि आप अपने आप ही कर रहे हैं? नहीं, हमारा शॉप है. ये शॉप आपका है? हमारा शॉप है. क्या आप बेचते हैं आप? हमारा डोसा वड़ा इडली वगैरह तो बेचते हैं. अभी धंधा अच्छा चल रहा है क्या? नहीं. क्यों? अरे इतने लोग हैं, कोई नहीं खा रहा? नहीं. और ये सफाई कोई नहीं कर रहा? करते हैं, लोग करते हैं. अच्छा, करते हैं. इनका वनडेज में करता है. अच्छा, वॉलंटियर. हाँ, हमारे दुकान का सामने तो हम सफाई करना मुझे अच्छा लगता है. लेकिन इनका वॉलंटियर दिन में कितनी बार सफाई करता है? शाम सुबह सब कर लेते, बीच में कर लेते. तो आपको इससे कोई तकलीफ नहीं हो रही? होता सब एडजस्ट करना पड़ता है सर. अच्छा, ठीक. So we have been here now about an hour and a half. Yeah. And I came here last night and I spent about an hour. आप पहले भी आए थे? मैं आया था जब सोनम बैठे नहीं थे उसके पहले. तब क्या और जनरली घूमे? जब ये लोग बैठ चुके थे आगे, सोनम बाद में ज्वाइन किए. अच्छा अच्छा. I तो- came when Dipke landed that day. Then उसके बाद just generally. फिर संडे को मैं आई थी right before the march when there wasn't a place to like put your It was foot. packed. It was जनपद तक packed. packed. Yeah. So let's start with your observations since you critique the media. We spoke to 2 or 3 people from the media. One who said he was roughed up, but he's here back. And he kind of shrugged and said, you know, part of the deal. What do you make of the mood? I mean, at least this side, it didn't seem so hostile. I'm sure that side it is. What's the difference? So everything inside this space, I think, is still more controlled. And even the guy told us, you know, who's manning the whole thing, कि यहाँ पे हमको फिर भी they have some control over what's happening. But outside these barricades, now we're seeing every दिन शाम को लोग संसद मार्ग पे आ जाते हैं, लोग बैठते हैं, तो वहाँ पे I don't think control है. On the hostility against media, I have been observing this since Shaheen Bagh. I think it reached, you know, you could feel it that became a talking point. But I feel there's a difference in what reporters are telling us now, that Shaheen Bagh, I think there was a distinction. People were making specific channels के साथ, Z News, Republic. They were saying कि यार हमको पता है ये शाम को बोल रहे हैं कि हम ISI हैं, हम फ्री बिरयानी खाने आते हैं, हम बिके हुए हैं, तो हमें पता है ये क्या. They had a clear understanding of Godi media. यहाँ पे क्या हो रहा है, because so many people are coming in uncontrollable numbers, it's just become a thing to attack just journalists with. So tomorrow I won't be surprised if even I come here at that Sansad Marg and people start heckling me and say Godi media hai. It's become a thing. Then Smrita Prakash will say, I told you so. But I think it reflects a broader, we have to admit that as an industry, it reflects a broader sentiment around journalists that, dude, you guys have not represented our problems for the last 12 years. In fact, we have not seen ourselves in what you guys do. That guy was so articulate, no, who said this. 10 साल से अगर आपने दिखाए होते हैं हमारे मुद्दे, तो यहाँ पे आज ये इकट्ठा होने की नौबत नहीं है. I think that is, it's a failure of the media that this has to happen. And do you think the absence of any legacy media here is in fear of hostility? I think so. हाँ. Because eyeballs is, I mean TRPs will Musical get. Yaqut is going and doing walkthroughs in Israel at the height of. कहाँ जा रहे हैं? ये चित्रा को Why are they देखिए not आप, here then? अंजना को देखिए आप, ये लोग कहाँ जाते हैं छोटी छोटी चीजों And के लिए. honestly, वो और खुद नहीं आ रहे. यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है. और आज अपने actually reporters को भी ना भेजें. Aj I saw they were doing live. There's a film that's been released today, so they were doing a live on that film release of crowds gathering. On the rest of the, you know, curiosity from yesterday when I came, Atul, और मैंने वीडियो पे भी देखा था, वो एक रजत दलाल करके बंदा है, वो मतलब he is famous on Insta for the vilest of things, nothing noble, and he didn't even commit that I've come to support. He says that कई लोग अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं, मैं सुनने आया हूँ. अब घर बैठ के सुने. It has also become a farming, क्या कहते हैं? Attention farming, engagement farming. I mean, some people who have nothing to do with this, and they're not even coming and saying we are with you. We're saying, you know, let's see what's happening. Okay, they're RF with helmets. I hope nothing untoward happens, but it's peaceful inside. So I don't know why they are marching with I think purpose. they're just establishing their presence. बस बल अपना. बीच में थोड़ा सा फ्लैग मार्च करके ये लोगों को सब. And as far as the journalistic value of this, one story is of course the logistics, all that. I think that's a fantastic story. Maybe someone should do it in detail. But the journalistic value of this stays how long? As an attention economy, which is the purpose, right? What do you think? Like, how does one keep that engagement happening?
for people to care. Because the government could wait it out. We tire them out. आई थिंक मुझे एक चीज़ लगती है कि इसमें जो एंगेजमेंट वाला डे टू डे, जैसे हम अगर इसको पीछे थोड़ा सा पीछे अन्ना मूवमेंट से देखें, अगर देखना शुरू करें तो दैट वाज मोर कंट्रोल्ड, बहुत टाइट था एंगेजमेंट के लिहाज से। उनके पास हर घंटे का, हर दिन का ऐसा प्लान होता था जो उनका मीडिया टीम से हमारा कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम लोग एज अ रिपोर्टर उसको एक दिन से दूसरे दिन, मतलब थ्रू फर्स्ट डे से लेकर एंड तक कवर कर रहे थे। तो उसमें इंगेजमेंट को लेकर इतना ज़बरदस्त वो था कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे अश्वथी, विभाव, ये तमाम उनकी जो टीम थी, आपके पास मिनट टू मिनट मेल आ रहा है, आपके पास वीके सिंह आएगा, अनुपम खेर आएगा, अब कौन यहाँ आने वाला है, आज आमिर खान बैठने वाला है, आज ये सब। तो ये जो चीज़ है अभी यहाँ पर वो कंट्रोल मिसिंग है, वो टाइट कंट्रोल जो था ना इसमें, यहाँ एक ये एंगेजमेंट के पर्पज से मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा मिसिंग है। इसको इनको बहुत तेज़ी से इवॉल्व करना चाहिए अगर इसको लॉन्ग सस्टेन करना है। और एक चीज़, आई डिडंट कवर इंडिया अगेंस्ट करप्शन, बट द थिंग इन माय पब्लिक मेमोरी, वो करप्शन के अलावा और कुछ नहीं था। पर यहाँ पे ये बहुत कुछ है, मतलब ये नीट भी है, पेपर लीक भी है, जस्ट जनरल डेमोक्रेसी की हालत क्या है, मतलब यहाँ पे हर कोई हर कुछ बोल रहा है। इट्स नॉट जस्ट एजुकेशन इज एन अम्ब्रेला थिंग, कि बच्चों का फ्यूचर इज एन अम्ब्रेला थिंग। आई थिंक फिर उसमें सब कुछ आ जाता है, देश की हालत क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, एवरीथिंग, बट एक अम्ब्रेला इशू इज बच्चों की हालत। So, to what you said, I think that is a strength in my view. I mean, I can just tell you कि भाई now I'm talking as a former protester. On our best day, when we were in Jadar, जब हम वहाँ शिफ्ट कर गए थे, and I call it a Jan Lokpal movement, you keep calling the Anda movement. Want to, but जब तक यहाँ था, जो क्राउड मैंने कल देखा उतना नहीं था हमारा। when we outgrew this, we moved there. यहाँ तो पूरी रोड ब्लॉक हो गई है, ठीक है। अब इतना क्राउड आई थिंक इज प्योरली बिकॉज ये सेंट्रलाइज नहीं है। सब यहाँ स्टेज के पास होने नहीं आए। अगर आप स्टेज के उस तरफ जाइए, देयर इज़ अ फुल स्ट्रीट देयर, होपफुली वी विल गेट यू विजुअल्स ऑफ दैट, वेयर देयर आर पॉकेट्स ऑफ 15, 20, 50, 100 पीपल, वो अपने अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो और वो स्टेज तक नहीं पहुँचना चाहते, वो वहीं पर खुश हैं, वो अपनी मुद्दे की बात वहीं कर रहे हैं। और जनरेशनल चेंज भी एक चीज़ है। जैसे वहाँ पे क्या था, वो करप्शन का जो मुद्दा था, ठीक है लोग परेशान थे, पर उसमें एजेड लोग, एबव 30 वालों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा था, जो कि ज़्यादातर कामकाजी होता है। ये जो जनरेशन है, ये मोस्टली स्कूल कॉलेजों में जाने वाली तैयारी कर रहे हैं। एवरेज एज, यस, दैट इज अनदर थिंग, द एवरेज एज ऑफ द जनरेशन, दैट इज ह्यूज। द एवरेज एज ऑफ दीज प्रोटेस्टर्स इज way lower than the Jan Lokpal, and which is actually something that the government would be concerned about, क्योंकि ये सारे first time voters हैं। बट एक चीज़ आई नोटिस यार, कि जैसे इंस्टाग्राम में जो आपका इस मूवमेंट का अंडरस्टैंडिंग आ रहा है ना, वो कूल रील्स, जेंजी कोर, पूकी, ये सब जो वो यहाँ पे एक्चुअली इट्स वेरी डिफरेंट। ये वर्किंग क्लास लोग दिख रहे हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स दिख रहे हैं, तो दैट इट इज़ नॉट, इंस्टाग्राम पे आपको लग रहा है पीपल लाइक अस मोस्टली, यू नो, लाइक यंग कूल किड्स डूइंग दिस व्हाटएवर, बट व्हेन यू कम हियर इट्स वेरी लाइक वेरी मिक्स क्राउड, मिक्स सेक्शन, जिनकी इन्फ्लेशन इशू है, पेट्रोल इशू है, कुछ भी, मतलब काफी कुछ। हाँ, अलग अलग सारे मुद्दे। अभी जैसे हम बैठे थे वहाँ पे, वो हाउस होम मेकर्स, बहुत सारी लेडीज थी जो बैठे थी, अपने छोटे बच्चे के साथ आई हैं वो। अब दे आर जस्ट हियर जस्ट टू शो सॉलिडेरिटी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उनका और कोई अपना डायरेक्ट स्टेक उस तरह से है। मुझे लगता है एक चीज़ है जिसके लिए हमें मीडिया को भी ब्लेम करना चाहिए इसके लिए, कि एट द हाइट ऑफ मोदीज पॉपुलैरिटी 37% पीपल वोटेड फॉर मोदी, द रेस्ट डिडंट। नाउ दैट रेस्ट, आई थिंक दिस इज़ अ कलेक्टिव थेरेपी सेशन फॉर ऑल ऑफ देम, कि भाई उनको इतना उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही ना। आप 24/7 चैनल्स में आप अपनी बात सुन रहे हैं ना, आप पार्लियामेंट में अपनी बात सुन रहे हैं, आप CGI को बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई टाइम नहीं है, ये वो। तो आई थिंक people coming here also just, you know, finally like the non-Modi voters feel like yes we can go here and we can just talk about anything without feeling कि anti-national है या गंदा है या। And also I think one thing that is a huge change is जो यहाँ पर नहीं बट बाहर वाली जो सड़क पे जो स्लोगन्स लग रहे हैं जनपद से, मोदी जी को वीडियोस मत दिखाना प्लीज, उनका दिल टूट जाएगा क्योंकि he is convinced that the nation loves him like a god। मतलब क्या लैंग्वेज में, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यूजर्स सब्सक्राइबर जो कंप्लेन करते थे कि मेरी बहुत गंदी जुबान है हफ्ता पे, मैंने इतने नए शब्द सीखे हैं जो मुझे कभी पता भी नहीं थे। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई हैव नेवर सीन बिफोर, दिस काइंड ऑफ स्लोगनेरिंग, एंड इट्स ऑल मोदी, इट्स नॉट प्रधान, इट्स नॉट शाह, इट्स नोबडी, all the slogans out there against Modi. That is something that I was really surprised by.
मुझे एक चीज़ और इस आंदोलन की जो खासियत लग रही है कि इसने कई सारे स्टीरियोटाइप या उस टैबू चीज़ें हैं ना उनको तोड़ा। जैसे जो अब्यूज़ है उसको लेकर इतना they don't ओपन care. में दे डोंट केयर कि वो दिखा रहे हैं देश उसको साउंड उसका बजा रहे हैं। वहाँ पे मोदी के जो बहुत सारे गंदे वाले टंग स्लिप हैं उनको यहाँ पर ओपनली दे आर यूजिंग। तो वो सब मतलब पहले मुझे नहीं लगता था कि कोई ऐसा ओपनली लेके गाली लगा रहा है। ऑल्सो अरे जब आई रिमेंबर Actually, जनलोकपाल किसी में पीएम के लिए हुआ होगा ऐसा, ऐसे नारे, मैंने ऐसे नारे तो नहीं पोस्टर्स सुने, में, ऐसे तो नहीं सुने मैंने। पीएम क्या मैंने मतलब मनमोहन के लिए मैक्सिमम मनमोहन ऐसे ऐसे बट आई थिंक हमारी जनरेशन वाज मे बी ऑल्सो लैंग्वेज वाज अ लिटिल साफ बट द वन थिंग बट आई रिमेंबर लाइक एन आउटरेज ऑल्सो हैज चेंज ना। मुझे याद है एंड दिस वाजंट हियर जब जनलोकपाल प्रोटेस्ट यहाँ हो रहा था इन सम अदर सिटी आई थिंक समवेयर इन उत्तराखंड एक गधे पर एक प्लेकार्ड लगा दिया था और वहाँ प्राइम मिनिस्टर लिख दिया था। ठीक है, वो विजुअल इतना मिल्क किया था ना। आई रिमेंबर वी वर सिटिंग एट नाइट एंड सेइंग हाउ डू वी काउंटर दिस। एक गधे पर बिकॉज यू हैड टू काउंटर इट भाई, दिस वाज नॉट डन हियर, इट वाज डन समवेयर द सिटी बट वी आर रिस्पांसिबल। But the media went at it. They got that one vision. And this is not a large gathering. It was 4 people gathering. Today, 100 times worse is happening, but they're not using that to fight it, to discredit it. I'll tell you why. Because if they use that to discredit them, first of all, they have to show that this is what is being said about Modi, no? आपको पहले तो बोलने का ये बोला इन्होंने इतने सारे लोगों ने, अब इसको लेके डिस्क्रेडिट करो। वो बताना नहीं चाहते कि इतने सारे लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं। आइडियाज मत दो, कल ही वो रिपब्लिक टीवी का पर एक चीज़ मनीषा मुझे लग रहा है एक दिमाग में आई मेरे बात कि कोई भी जो हाल फिलहाल के मोमेंट हैं ये जो मीडिया की हॉस्टाइलिटी लोगों से है, लोगों के मुद्दों से है, वो इसमें इतना बड़ा फैक्टर है कि ये अपना काम नहीं कर रहे। जो बच्चे हमसे वो कह रहे थे कि भाई 10 साल से ये करते तो हमें यहाँ आना ही क्यों पड़ता। बहुत बुरा है कि हम कतई इस चीज़ को समर्थन तो कर नहीं सकते कि किसी ने पीट दिया मीडिया को, किसी ने हैकल कर दिया, ये बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन इस सब के बावजूद कोई भी मोमेंट आप देख लीजिए, चाहे किसान का आंदोलन रहा हो, चाहे ये मीडिया ने जो काम किया, अगर वहाँ से उनको वो हटाते नहीं तो 2 दिन में उनको डिस्क्रेडिट करके खालिस्तानी घोषित कर देते, 2 दिन में इनको विदेशी को, तो उससे तो ये लोग क्यों चाहेंगे, क्या चाइना से हो रहे हैं ये, तो ये उनको क्यों अपने साथ बिठाएंगे, ये उनको दूर क्यों नहीं करेंगे कि ये हमारे अगर इस तरह से ही करना है इनको। No, what remember when Deepak Chaurasia had come for an interview when he and Sudhir Shaheen कि वो हमें पता नहीं पाकिस्तान लग रहा है या हमें लग नहीं रहा कि हमारा देश है, whatever. But एक मैं see they have more volunteers going with water and food etc. Yeah, Blinkit. I want to ask you this actually because this is something really troubling me and I'm a little worried about that कि यहाँ पे कोई security नहीं है, like we saw free for all है, खुद ले लो admit करें कि actually we don't have much control. Like in Anna Andolan when you had such massive crowds coming, isn't it a worry? And do you see the difference here कि यहाँ पे थोड़ा is it dangerous a little bit because actually that was something at least back then इतनी एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी कि अब तो ये भी है ना कोई प्लांट कर दे आगे कुछ ऐसा तो मीडिया लेके उसको, लेकिन तब 2-4 अखाड़े आए थे यहाँ हरियाणा से, तो वो एज अ बाउंसर्स दे यूज्ड टू बी अराउंड, the cops were always they there. came as volunteers? So they came as volunteers. That is, in fact, there is Naveen and all who finally, he and Swati got married to each other. Maliwal, when they met there at the protest only. So he was from a akhada in Rohtak. So we had a few akhadas who had come. And I'm sure they also have some, such. But the thing about getting the akhadas is they already have a hierarchy. So the first time when it became big and, we were not enough to manage security, these guys showed up. They already have a hierarchy. Who's the main Pahalwan, who's their guru, you are the new fellows. So you don't have to say, so they will just take over everything. So I'm guessing they also have such volunteers who have a built-in hierarchy because I believe to maintain order, you need a hierarchy. Otherwise, it's who's listening to who. Now, which is why it feels a bit unnerving to me here. अन्ना से ही मैं उसे जनलोकपाल से ही एक और मैं बताऊं, ये जो चीज़ है कि वो कितना टाइट कंट्रोल था पूरा, कि जैसे यहाँ पर अभी कल हुआ कि वो अचानक से रात में पत्थर चलाने लगे एक ग्रुप, आरएफ ने वहाँ पर तुरंत ही टीयर गैस और ये सब कल रात और की एक है। पुलिसमैन को वहाँ पर मुझे याद है रात में 9 बजे हम लोग गए, अन्ना मोहन रामलीला मैदान में जब आया था, और ये लोग इनके वॉलंटियर्स बीच में एवरीवेयर देवर एक मिनट की इन्फॉर्मेशन कि इस कॉर्नर पे क्या है, क्योंकि वो तो बहुत ह्यूज मैदान था ना,
तो अब कोई ग्रुप कहाँ कर रहा है, तो ये मंच से तो कह रहे हैं कि कोई गाली नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई कुछ नहीं, ये तो अपील हो रही है। तो एक ग्रुप आया कहीं से, लोगों को बाद में पता चला कि वो कांग्रेस समर्थक थे, और वो अचानक से आके मनमोहन सिंह मुर्दाबाद, ये माँ बहन कर टाइप वो शुरू हो गया। वो तब भी होता था ऐसे हाँ, प्लांट्स वाई इमीडिएटली वो मंच पे, वो यहाँ से जो भी था वॉलंटियर, इमीडिएटली उसने वहाँ पे कन्वे किया, फिर वहाँ से तुरंत मंच से अपील हुई, और वहाँ से 2 जिम्मेदार लोग यहाँ आए कि ये नहीं होगा, यहाँ नहीं ऐसे चलेगा, यहाँ गाली नहीं हो सकती। तो ये बताता है कि धीरे धीरे जब इतना बड़ा हो गया, तब आप कैसे ऑर्गेनाइज करके उसको कंट्रोल करते हैं। Exactly, and that was also because, now what I was saying, the upside and downside, because everything was around the stage. Here, they will not even know what's happening in the Janpat side, you know? Because you're right, I remember there was the first time there was some people who were misbehaved with. Calls came to all of us. Something has happened there, find out who those guys are, get them out. You know, there was pandemonium and calls went around, identify who are the guys who misbehaved and remove them from here. Are they our people? Are they? Here, how would they even know if something happens out there? You see? So the advantage of not having everything around the stage is that the numbers are way bigger. Yeah, and it's a self-sustaining thing. Like Raffle said, they don't need anyone, ki Sonam, Dipke, whatever. They just need themselves to talk about their issues. Yeah. So it's actually very fascinating. I don't think we've seen anything like this in any protest. Yeah, this is a completely where- different. And I guess Instagram, this is like our first Instagram kind of, yeah. Which is So, quite... at least, I mean, I see a lot of people who identify themselves as journalists saying that, oh, these guys are funded from there, they are from there, they want to break. Our former Hafta person was saying that, inka to, you know, I find this, they want to burn India. Or they want, like, I don't understand, like, who, I mean, much as I dislike the right wing, I don't think they want to break India. I mean, I think they have a very warped view of what is India. Like, why someone, I mean, they've watched too many Amrish Puri films. Aaj hum India ko todenge. Boss, no one thinks like that. You know, you may disagree with someone, but that's no one's plan. Because it's not your plan. Oh, we have a young journalist here. Come from Red Mike. Are you? Come join us. He's been covering this for such a long time. I'm waiting for somebody's waiting. Okay, are you Godi or are you non-Godi? Because that. I'm your Godi. I'm your Godi. I'm your side of Godi. But, so I think basically this, I find it really strange, adult full-grown men saying they want to break India. Like, who the fuck wants, like, why is that anyone's motivation? Like, why would I say? I mean, I can say I want to loot India and open a Abhinandan Cares fund and say everyone give me money. You know, that is a legitimate, not a legitimate, but it is a rational aspiration. I can say I want to buy land, or I want to change land laws and make my land more useful. I want to occupy chairs, I want to break parties. There is something in it for me. Who wakes up and I want to break India? Dudes, man, like, come up with something better. And it is because the government has become too used to listening to people like this that this has happened. You need to, at the end of the day, get in touch with your people, yaar. Basant mila एक BJP supporter से यहाँ पे, who said मैं BJP को, कितने मैं मिली उधर protest के दिन कि हाँ हम BJP को support करते हैं, हम वोट देते हैं, but कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं है, ये नहीं. तो it is a collective catharsis for people जिनकी life में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं. वो E20 हो सकता है, वो inflation हो सकता है, education. But hear them out, like exactly what you're saying. Why does it have to be this nefarious plot? और वो formula bore हो गया, no one's buying it. यार you remember मोदी जी के आने के बाद घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, बंटवारे हो गए थे। अब मोदी जी की वजह से फिर से घरों में बंटवारे हो गए, बच्चों की वजह से बच्चे अब उनका लड़ाइयाँ कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से। But now you see a lot more people coming in. We've seen 3 different waves of people coming in. We've seen RAF also, more RAF is going in. So I think as the evening progresses, It becomes more the party. crowds become bigger, people have finished work and they come to participate. One more question I had of you. Comparison with the hostility with police at the Janlopak Bal movement. Was this that sentiment कि ये उनकी टीम के हैं या हमारे टीम के नहीं है? No, the police, there was at no stage did they, what we saw day before yesterday never happened at that time. There was a little bit once of pushing, shoving, but by and large, the relations between the police and the volunteers and the organizers was very good. I mean, it was a bit too good in my view. I was like, dude, it's such one homie also may not be such a good idea, and yeah, right through. See, this is why you should not always scroll. Okay, so before we wind up, who was
your favorite conversation there. I can tell you mine first. Mine was the doctor. Doctor, I took free advice from you. As it is, you are suffering and you are not charging your daily patients. Amazing, dude. He's left everything, come here, and he's. But I asked him off camera, my HbA1c. He gave me some good tips. So that was my favorite conversation. Atul? आई थिंक मेरा ये वाला ही बढ़िया था जो रिजवी है, जिसका ये कहना था कि अपना नाम नहीं बता सकता मैं, नहीं तो मीडिया मुझे 2 मिनट में खारिज कर देगा। और ये यू पॉइंट आउट कि भैया ये इतनी बुरी स्थिति है, इतनी बुरी स्थिति है, ऐसा बना दिया है आपने कि एक आदमी, और ये पिछले 5, 7, 10 दिनों में मेरे सामने ऐसे दूसरी स्थिति आई है। दूसरी बात मनीषा बोलती है यार कि अगर हिंदू प्रोटेस्ट कर रहा है, he still feels little secure. A Muslim will feel very insecure क्योंकि पता नहीं क्या क्या डाल देंगे। वो उस लड़की का एक जो मेरे ख्याल से ग्रेजुएट था, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रही है कि मेरा नाम क्या कुछ सब मुस्लिम आई एम मिसिंग, लेकिन मैं यहाँ नहीं बोल सकती इस चैनल पे। मैंने अपना नाम इनको अभी देखिए खुशबू बताया है। दिस इज़ वेरी सैड सिचुएशन। बार बार ये हमारे सामने आ रहा है कि हम लोगों तो ये हमारे साथ भी मिले, वो रिजवी थे, उनका नाम था। Yours, Manisha, favorite? Same person, and for selfish reasons, because he recognized, he told you, it's because of you guys that we are here, that you are the original protesters, and what he meant to say was, you guys have been doing this for a long time, calling out the media, and actually also standing up with us in a way when it wasn't trendy, it wasn't cool, जब Instagram reels नहीं बन रही, so for selfish reasons, I liked him. Yeah, because basically. he recognized us. Yeah, he said that had the media done its job and listened to you, this would never have happened. Yeah, and I genuinely think that's a very astute, even to understand this whole thing as a social movement. I genuinely feel people today don't know where to go when they want to vent, and media traditionally did that job to absorb the pain and kind of be a pressure valve. And also feedback to those in power. कि भाई feedback loop है आपका, तो अब feedback loop उनका कट हो गया, उनको conspiracy theory सुनाई देती है रोज की, चाइना है, CIA, and लोगों को भी लग रहा है भाई सुनवाई कहाँ हो रही है हमारी। कॉन्स्पिरेसी पीआर पे मुझे ध्यान आया मनीषा, इसमें कितनी सारी चीज़ें निकल के आई हैं। जैसे अब मुझे नहीं मालूम कि ये सरकार करवा रही थी, दिल्ली पुलिस करवा रही थी, कौन, तो उसमें किसी को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने देखा एक ट्रक आके खड़ा था जिसमें पत्थर भरे थे, एक वो आके यहाँ पर टूटी फूटी गाड़ियाँ लाके खड़ी गई थी। वो टूटी फूटी गाड़ी थी जिसको सीज कर दिया है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 5 साल पहले। उसके ऊपर 20 से 30 करीब वो चालान थे, लेकिन वो डैमेज गाड़ी जिसमें पेड़ गिर गया उसको यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया गया राजौरी गार्डन से। तो ये सारी चीज़ें, इतनी सारी मेहनत जो हो रही है, कौन कर रहा है, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी, सिर्फ पीआर के लिए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के यहाँ मेल जा रहे हैं कि आपको 1 लाख रुपए देंगे, 50,000 रुपए देंगे, आप रील बनाइए और शिक्षा व्यवस्था का अच्छाई करिए, मोदी जी की तारीफ कर दीजिए और इसकी बुराई कर दीजिए। तो इतनी एनर्जी कौन लगा रहा है यार इन लोगों को, अपने लोगों को बदनाम करने के लिए? इससे तो बेहतर होता कि आप शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम और परीक्षा ही ठीक से ले लेते लोगों। लेकिन you know the feedback, I mean, I don't know how much in touch Mr. Modi is with what's happening on the ground, but if someone was just to record all the slogans here and play them to him, मतलब अंगे न मातरम, तो मतलब it would be, because all you see is किसी ने मंदिर बना दिया, सुनील शेट्टी says वो तो पूजा करती है मेरी बेटी, वो तो भगवान है। अब भाई शायद ऐसे लोग हों, लेकिन ऐसे लोग भी हैं, इनका शायद इनको आइडिया ही नहीं है कि ऐसे लोग हैं। और जब ऐसे लोगों को बस यही दिखेगा कि भाई सब तो इसको भगवान मानते हैं, तो स्लोगन भी ऐसे आएंगे। So yeah, I think with that, it's very important to remember that we've been here for a long time, since 2012. We've been calling out the media that's not served you. And we've tried to do a lot of ground reporting on this movement. Our journalists have been here for about a month now, since Deepke landed. In fact, last 1 week, relentlessly, a very small team with very meager resources, not with the nice cameras. I keep complaining, हमारे पास कैमरा नहीं है, हमारे पास ट्राइपॉड नहीं है, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है. But despite all of that, we've tried to bring you reports from here. We've tried to be as honest and as clear and as factual as we could have been with our reporting.
So please do support us. And Please so do subscribe. short-staffed are we here for reporters. Even I had to step out हाँ of my office. कि फाइनली लोग थक गए हैं, उनको सोने दो आज रिपोर्टर्स को, तो हम जाके कुछ कर लेते हैं आज. मैं ही चला क्योंकि रात जाता में हूँ. 3 बजे वापस गए हैं, तो इसके बाद ये हुआ कि सीईओ को आना ही पड़ेगा. But So do subscribe yes. to News Laundry. QR code link in the show notes. Pay to keep news free. और गर्व से कहो मेरे मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें.